वीडियो बना। चलो अब चलो तुम्हें पता है मैं Good morning, friends. Thank you, our President Dr. Rahul Jeswani and the whole SMSA committee for giving me the opportunity to introduce Acharya Amit ji and brief about yoga. As said by Dr. Rahul, 21st June is celebrated as International Yoga Day on a larger scale since 2014 as yoga is the need of the hour. Our Honorable Prime Minister has quoted, yoga is now considered as the agent of global good. In today's time, importance of yoga has increased. To know what first, can anybody tell me what is yoga? No, why not? I agree. Yoga has been derived. No vote. Yoga has been derived from the word yuj, which means union. Union with whom? Yes, union with your own self. Self-realization and self-awareness. Yoga is not just exercise, but it's the way to live our day-to-day life that is 24/7 used by our new generation. So, you should be aware what we say, what we behave, our actions and reactions. So, the journey of self-discovery can be achieved by the 8 steps of yoga. So, let us learn the self-awareness today itself by focusing on muscle stretch and breathing pattern whenever or whatever Acharya makes us do today. So, be aware of each and every stretch. So, on the lighter note, once we are able to control our thoughts and emotions by practicing yoga, we will not become the victim of the cyber fraud, which are the second topic of our day. Ladies and gentlemen, please welcome Acharya Amit Kumarji, a dedicated yoga guru and acupuncturist hailing from the heartland of India, Uttar Pradesh. Acharya ji has received certificates of yoga from the prestigious Sanskrit University of Uttarakhand in 2012 and also from Yog Bharati Bihar in 2013. He also received a certificate of honor from Uttarakhand State of Yoga Association. Acharya ji has years of experience as a yoga trainer in cities like Delhi as well as Mumbai. Acharya ji is the guru of Ayurveda and naturopathy with lots of good experience in physiotherapy too. Acharya ji has been transforming through his expertise in Mumbai since 2014. He is also been actively involved in NGO providing free consultations and organizing wellness camps, making a positive impact on the countless lives. Thank you. We are blessed to Acharya ji Amit ji for blessing us today. Thank you very much. बेसिक से अभ्यास है वो करने के लिए जा रहे हैं। जो आजकल की समस्या है अर्थराइटिस वगैरह एज होने के बाद में जो इनपे सभी को हो रहा है, वो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा ही है, तो उस अर्थराइटिस को हम सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस हम पार्ट यही रखते हैं, हम पहले बैठ जाइए, ओम चैंटिंग करना है, किसी भी काम को दोबारा करने से पहले आंखें बंद करके दो हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है सभी को। लंबी गहरी श्वास।
हमें धीरे से रखना है। बेसिक अभ्यास है, यानी कि दोनों पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाइए। दोनों हाथ शरीर के बगल में, कमर को सीधा रखना और ध्यान रहेगा एंकल पे। तो एंकल हमारी प्रॉब्लम चालू होती है, घुटनों का जितने भी जॉइंट हमारे शरीर के अंदर वो जॉइंट पेन आजकल चली जाए, तो उसको धीरे से श्वास के साथ में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ब्रीथ इन करते हुए उसको अपोजिट वे में पुश करना है और ब्रीथ आउट में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। श्वास का बहुत महत्व है। इसके साथ साथ जो हम अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम भी साथ साथ में हो रहा है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इस अभ्यास को 10 से 15 बार आप दिन में रोज कर सकते हैं। यहाँ से रोटेशन हमें करना है, एंकल रोटेशन। स्लोली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। खिंचाव का ध्यान रखें, काफ मसल्स पर खिंचाव आएगा और एंकल के फ्रंट वाले भाग में। धीरे धीरे इस अभ्यास को 10 से 15 बार क्लॉकवाइज, 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज हम दोहरा सकते हैं। पूरा स्ट्रेच करते हैं। धीरे से रिवर्स करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मेन है ब्रीदिंग का, हर एक पोस्चर में, हर एक एक्सरसाइज में ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, इससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड एंकल के बाद में हमारा नी जॉइंट आता है। यहाँ से नी का अभ्यास हमें करना है। राइट लेग को आप बेंड करके साइड को रोक करिएगा। मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, इसको आप घर पे अच्छे से रिपीट कर सकते हैं। कमर से ऐसे धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों लेग को लिफ्ट करके पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और ये खिंचाव हमें फील करना है। श्वास छोड़कर नीचे गिरें, आइज को रोक करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन आउट। और अच्छे से खिंचाव दे सकते हैं आप। 4 and 5 अदर लेग ऐसे दूसरे पैर को वीक नहीं काउंट हमें करना है। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। खासकर कमर हमें सीधा रखना है। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखिए। ऊपर पैरों को लिफ्ट करते हुए श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे। वो अभ्यास हो गया आपके एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट। यहाँ पर आप रोटेशन करेंगे, नी का रोटेशन करना है जिससे कि आपका लिगामेंट स्ट्रॉन्ग रहे और डिस्क भी प्रॉपर्ली वर्क करे। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते। खिंचाव वही देना है हमें काफ मसल्स पर। इसको 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीथ इन ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट। तो धीरे से रिवर्स करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। कमर गर्दन सीधी, श्वास पे पूरा ध्यान। वही काउंट आप दूसरे पैर से अपने दोहराना है। ऐसे ब्रीथ इन आउट, धीरे धीरे रोटेट करते हुए अपने नीज के ऊपर ध्यान रखें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मिनिमम 6 टाइम करिएगा। अभी फिर इसको मिनिमम
calf muscles and thigh muscles, hamstring, यहाँ से अभी हम इस जॉइंट से हम हिप जॉइंट पे जाएंगे, हाफ बटरफ्लाई, राइट लेग को बेंड करेंगे धीरे से, राइट लेग को बेंड करके आइज को ऊपर रखते हैं, तो कमर सीधी रखते हुए, फिर इसमें आप फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी, ब्रीथ इन करते हुए नीचे को लूज करना है, कमर सीधी रखना है, यहाँ पे स्लो और ब्रीथ आउट में आइज से अपने लोअर एब्डोमेन को यूरिन ब्लैडर को पुश कर सकते हैं, सो ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out। दूसरा पार्ट बिल्कुल सीधा रहेगा, जितना सीधा रखोगे उतना अच्छा है। अगर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखते हैं तो आपके नी जॉइंट पर प्रेशर आता है, जिससे पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस अभ्यास को भी हम 10 बार कर सकते हैं, 10 से 15 बार कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, इसे धीरे धीरे, इसमें नेचुरल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते हुए इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। चेंज करेंगे, बैक चेंज करेंगे। ऐसे ब्रीथ इन नीचे की ओर पुश करेंगे और ब्रीथ आउट में पैर बिल्कुल सीधा खींच के बचाओ पर भी ध्यान रखें। फुल बटरफ्लाई, यहाँ से दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों पैरों को वाइड। जो फुल बटरफ्लाई नहीं कर सकता वो हाफ बटरफ्लाई करें, धीरे धीरे कमर कर दो सीधी, अच्छे से रोक के मेन है श्वास। आजकल श्वास ज्यादातर मुंह से ले रहे हैं लोग एक्सरसाइज में, नेचर के खिलाफ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आती है। श्वास हमेशा नाक से लेने के लिए बनाया है, नाक से नीचे ऑक्सीजन जाएगी, नाक से छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मुंह से लोग आंखों के अंदर श्वास आती है, जिससे हमारा एब्डोमेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर एक अभ्यास में नोज से श्वास लेना है, लंबी श्वास लोगे तो प्राणायाम साथ साथ आपका हो रहा है, ये ध्यान रखें। कमर गर्दन सीधी रखना है, जितना आप ढीला छोड़ोगे रखोगे उतना अपर बॉडी का भार आपके लोअर बॉडी पे आता है, जिससे कि आपके डिस्क दबती है और धीरे धीरे पेन चालू हो जाता है। तो ध्यान रखें धीरे से। अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, वरना अगर फ्लेक्सिबल बनाना है तो उन्हें एक्सेल में धीरे धीरे आगे की ओर, और यहाँ पर 4 से 5 सांस लेना है डीप, ग्रोइंग जॉइंट को धीरे धीरे ढीला छोड़ना है, कहीं पे रुकना है, नोज से सांस लेना है। 1 2 3 4 5 इनहेल, आप दोनों पैरों को धीरे से फोल्ड करिए, जो अभी खिंचाव आया था उसमें आपको रिलैक्स करना है, ग्रोइंग जॉइंट मसल्स को, एंड धीरे से
से अर्धमस्तिष्क आसन जो डायबिटीज में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से राइट लेग को बेंड करके या लेफ्ट लेग को बेंड करके रखिएगा और धीरे से क्रॉस करना है हाथ को। जो पैर बेंड किया हुआ देखिए उसी साइड में हमें घूमना है। मैं इधर से दिखाता हूँ। एक साइड इधर से जो पैर हमने मोड़ा है ठीक है उसी हाथ को पीछे लेके जाना है। जो पैर हमने मोड़ा है उसी हाथ को पीछे रखिए स्पाइन के जस्ट पीछे, कमर गर्दन सीधी और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। अब यहाँ पर एब्डोमेन ब्रीदिंग करना है। सिर्फ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए अपने एब्डोमेन को अंदर बाहर खींचना है, गर्दन को पीछे की ओर। देखिए लोअर एब्डोमेन को दबाना है और जितना हो सकता है स्पाइन के जस्ट नीचे की ओर हाथों को रखें और अच्छे से आप ट्विस्ट कर सकें। इसमें गर्दन भी आप खींच के रखिए। कम बैक श्वास लेते हो धीरे से बाहर। ऐसे ही दूसरी साइड में हमें दोहराना है। कम से कम 10 श्वास तक हमें जरूर रुकना है और डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन को अंदर बाहर खींचते रहना है। श्वास लेते रहिए, अपनी बॉडी को और हल्का हल्का ट्विस्ट करिए। देखिए यूरिन ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आप लोग इतना सेवा करते हो सबका, तो अपना भी ध्यान रखिए इससे और लंबे समय तक हम अच्छे से सेवा कर सके। अब यहाँ से अगर किसी का लोअर बैक प्रॉब्लम है, दर्द है, तो आप ओवर बेंडिंग ना करिए, वरना आप नॉर्मली एब्डोमेन को पुश करते हो, पश्चिमोत्तानासन करिए। धीरे धीरे दोनों आपको उठाइए, स्ट्रेच। जितना आप कमर को सीधा या स्पाइन को सीधा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और धीरे से स्ट्रेट रखते हुए ही मतलब ओवर बेंडिंग ना है, ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर एक लंबी श्वास के साथ ऊपर आए और ब्रीथ आउट करते हुए ब्रीथ इन। इसमें एंकल बेंडिंग का अभ्यास भी हम साथ में कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल में अपनी ओर पैरों के पंजों को खींचिए। इनहेल में ऊपर 10 से 15 बार या 20 बार अभ्यास करना है। जब भी श्वास छोड़ेंगे पेट को अंदर खींचने का प्रयास करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। पर ध्यान है श्वास नोज से चलती रहनी चाहिए। श्वास छोड़ के आगे की ओर, श्वास लेके ऊपर। देखिए इसमें जॉइंट ये शोल्डर जॉइंट भी चल रहा है। जब आप ओवर बेंड करते हैं शोल्डर भी चल रहा है, गर्दन भी चल रहा है, पूरी स्पाइन का अभ्यास है। होल्ड करिए, यहाँ पर डीप इनहेल एक्सहेल करिए, स्पाइन को हर श्वास के साथ में खींचते रहना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल ऐसे लॉक करिए फिंगर आपस में और स्ट्रेच करके यहाँ पर होल्ड करिए। 1 पेट खींचना चाहिए आप लोगों का। फॉरवर्ड बेंडिंग में होल्ड करना, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे यहाँ पर भी 4 से 5 श्वास लीजिए। 1 2 पैरों के पंजों को या टो को पकड़ने का प्रयास करिए। 3 4 5 6 7 8 आप वहाँ पे भी कर सकते हो। 9 10 इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अभी आपका ये हिप जॉइंट का अभ्यास हुआ है, एंकल का, नी का और पूरे स्पाइन का। अब इसको ट्विस्ट करके मूव कर लीजिए जितना फ्री हो जाएगा। जैसे समुद्र
ट्विस्ट करते हुए जाते हैं। जैसे पीछे गए पेट को अंदर खींच लेना, कोई श्वास बाहर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, आप पूरा पीछे नहीं जाओगे, आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस एंगल में देखिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप वहाँ पर सपोर्ट लेकर नहीं कर सकते, पकड़ करके ट्विस्ट करिए। धीरे धीरे हाथों को आराम से रखें। तो यहाँ पर श्वास लेना है और श्वास छोड़ के मेन है अपने एब्डोमेन को दबाना, क्योंकि जितना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। यह अभ्यास भी कम से कम 20 टाइम आपको दोहराना है घर पर। यहाँ से अभी पूरे स्पाइन का हमने अभ्यास किया है, एब्डोमेन का इस्तेमाल हमें बार-बार करने का ध्यान रखिएगा। जब हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास छोड़ने का मतलब शरीर को खाली करना, तो पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करना है, जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स हमारे खुश हों और उनमें ब्लड सर्कुलेशन हो, वो बहुत जरूरी है। अभी यहाँ से शोल्डर रोटेशन का अभ्यास हमें करना है। दोनों पैरों को क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं या सीधा रख के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को बैंड करके शोल्डर पे रखिएगा। तो इस शोल्डर प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसके लिए आपको बहुत फायदा देगा। इसमें गर्दन का भी अभ्यास ऐड कर सकते हैं। गर्दन को नीचे रख के भी करना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर, सो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ के कमर सीधा रखें, श्वास लेते ऊपर की ओर, जितना भी हो सकता है शोल्डर ब्लेड को आप अपने पूरा मिलाते हुए इस अभ्यास को 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास का ध्यान रखेंगे, कितनी लंबी श्वास के साथ इस अभ्यास को करेंगे, हर एक अभ्यास। तो आपका 1 घंटा अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो 1 घंटा प्राणायाम भी होता है। धीरे से रिवर्स करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे। थकावट होगी आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि जब आप ध्यान से करोगे ना तो मसल्स का पता लगेगा हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितना है। अभी ब्रीदिंग आप लोग शायद पहले गलत करते होंगे, तो आपको थोड़ा ब्रीदिंग पे वर्क करना है, क्योंकि यही जीवन है अपना। खाने के बिना शायद आप लोग रह सकते हैं, दिन के लिए एक मिनट के लिए श्वास के बिना नहीं रह सकते, तो ये रास्ता है ये और फ्री में मिलता है। अभी यहाँ से गर्दन का अभ्यास हमें करना है, गर्दन को रोटेट करना है। अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड में जब स्किन को खींचते हुए चलेंगे, डबल चिन की लेंगे और गर्दन को पीछे भी लेके जाएंगे। अगर सर्वाइकल में ज़्यादा गर्दन पीछे भी लेके जाएंगे तो रोटेशन करना है धीरे धीरे से। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए और पीछे की ओर श्वास लेते हुए। कमर सीधा रखेंगे, जिसको भी चक्कर आते हैं तो आप बंद करके नहीं करें। इसमें चक्कर आने की भी संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ से नसें दब जाती है गर्दन से, तो ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम आपको अभ्यास करना है।
पैरों को थोड़ा सा वाइड करिएगा शोल्डर लेवल में। ट्यूनिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और इसको करने का तरीका है धीरे धीरे लंबी श्वास के साथ। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर श्वास छोड़ते हुए टच कराने का प्रयास करना है और घुटनों को टच कराने का प्रयास करना है और सांस लेते जितना हो सकता है पीछे की ओर, बॉडी को पीछे और गर्दन सामने की ओर, थोड़ा निगाह सामने की ओर रखिए। एब्डोमेन पे प्रेशर आना चाहिए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन में पीछे की ओर जाना है, ब्रीथ आउट में फॉरवर्ड बेंड करना है और ध्यान रखिए श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचने का प्रयास भी करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम 10 टाइम को इसको करना है। यह अभ्यास खाली पेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिवर्स करिए, धीरे से रिवर्स करेंगे। ब्रीथ इन बैक, कमर को ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा एक्टिव रखना है, कमर को सीधा रखते हुए पीछे की ओर जाना है। यहाँ से चूनिंग द मिल, मुंह का संचालन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और वेट कम करने के लिए भी, जिससे मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। धीरे धीरे दोनों हाथों का समुच्चयन करें, सांस लेते ऊपर की ओर, शोल्डर रोटेशन इसके साथ साथ में हो रहा है और श्वास छोड़ते आगे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते करते हुए ध्यान रखना है अपने बॉडी पर, बॉडी को कहाँ पे पेन है, कहाँ पे स्ट्रेच है, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कि नहीं। और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे आप बिल्कुल कंफर्ट लेवल में 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है। ये बेसिक से अभ्यास है। मिनिमम 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से रिवर्स करेंगे, ब्रीथ आउट में फॉरवर्ड, ब्रीथ इन में पूरा खींचते हो ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट में सामने। कमर सीधी रखें, जब ऊपर की ओर जाते हैं स्पाइन को पूरा खींचना। आप भी कर सकते हैं, ये सारे हमारे जॉइंट के अभ्यास हो गए हैं। जितना भी जिसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर एज होने के कारण आदमी थोड़ा जॉइंट पेन का शिकार हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी है, क्योंकि गैस के बाद के कारण भी जॉइंट पेन रहता है, तो उसमें सब में बहुत फायदेमंद अभ्यास है। अभी हम पेट केवल अभ्यास करेंगे। जितना हम पेट केवल लेकर करते हैं उतना हमारा इंटरनल सिस्टम ठीक है। तो धीरे से पेट केवल लेते हैं। कोरोना टाइम में आप लोगों ने ऐसी ऑक्सीजन की पूर्ति कराई, मालूम है कराया है ना, क्योंकि इसमें हमारे लंग्स नीचे की ओर रहते हैं। ग्रेविटी के कारण ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छे से होता है और ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से आती है। तो ये थाइस के नीचे दोनों हाथों को रखिए,
दोनों पैरों को अच्छे से मिला के रखेंगे, ऐसे थोड़ा सामने की ओर रखेंगे। धीरे धीरे हमें श्वास लेते हुए एक पैर को लिफ्ट करना है सरल आसन में। श्वास लेते हुए लोअर एब्डोमेन पे हमें खिंचाव देना है, लोअर बैक पे खिंचाव देना है, पूरी मसल को, बैक का जो पूरा मसल है उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेच के लिए स्लोली डाउन। ब्रीथ इन करते हुए दूसरा पैर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ध्यान खिंचाव पर, श्वास प्रश्वास पर। अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इस अभ्यास को घर पे 20 से 30 टाइम आपको दोहराना है, तो लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, यूरिन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास लेके ऊपर की ओर, श्वास छोड़ के पैरों को नीचे की ओर। पैरों को बैंड नहीं करेंगे, धीरे धीरे इसको सीधा रखते हुए लिफ्ट करना है। थाइस के नीचे हाथों को अच्छे से दबा के रखना है, जिससे कि आपकी लोअर बॉडी या लोअर बैक पर ज्यादा प्रेशर ना आए। एक पैर को होल्ड करिए ऊपर की ओर, यहाँ पर आपको ऐसे पूरा रोक के रखना ऊपर। एक पैर राइट या लेफ्ट कोई भी पैर लीजिए और श्वास लेते रहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही मन में काउंट करना है और आपको रोक के रखना है, इससे पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। धीरे धीरे ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर श्वास ले लेना है, अभ्यास के बीच में श्वास लेते रहना है। दोनों हाथों को शरीर के बगल में वहीं पे रखिएगा, साइड में, उधर पीछे पीछे ऊपर की ओर। देखिए हमें मुट्ठियों को बंद करते हुए, अभी फिंगर के जो जॉइंट्स हैं उनको भी हमें बार बार मुट्ठी बंद करना है और ढीला छोड़ना है। अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, ऐसे पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए शोल्डर को खींचते हुए, चिन को खींचते हुए एंड स्लोली डाउन। पूरा भार पेट पर। ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास लेते ऊपर की ओर, आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान शरीर पर। श्वास छोड़ते हुए इसी अभ्यास में आप नी टाइप कर सकते हैं, थाइस टाइप कर सकते हैं। लोअर बैक पर ध्यान दीजिए, लोअर एब्डोमेन, शोल्डर, नेक। धीरे धीरे ध्यान से इस अभ्यास को दोहराते रहिए 10 to 15 टाइम। लंबी श्वास लेते ऊपर की ओर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। होल्ड करिए, होल्ड करके पूरे शरीर पर ध्यान लगाइएगा कहाँ पर खिंचाव आ रहा है। आंखें बंद करके पूरे शरीर को देखने का प्रयास करिएगा। सिर्फ पोस्चर होल्ड करना है, एब्डोमेन में दबाव फील करिए श्वास के साथ। स्लोली डाउन। दोनों हाथों को कमर के पीछे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सरल धनुरासन की बात करें तो इसमें
घुटनों पर प्रेशर आता है। एक एज होने के बाद या फिर जिसको घुटनों का प्रॉब्लम है वहाँ पर प्रेशर आएगा जब हम इसको खींचते हैं। तो यहाँ पे एंकल को लॉक करना है और धीरे धीरे सरल भुजंगासन में हमें लिफ्ट करना है अपनी बॉडी को। ऐसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में जाओ, हल्का सा लिफ्ट करना है। ब्रीथ इन थाइज लिफ्ट करना है और शोल्डर अपर बॉडी खिंचा हुआ है। तो आप ऐसे ऐसे पीछे को के पीछे रखो और बस ऐसे ही। जो पैरों को लॉक नहीं कर सकता वो सिंपली थोड़ा उठेंगे ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे की ओर। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहराइए। स्पाइन का सही से आ जाएगा और लंग्स थोड़ा फूलते हैं। इसको होल्ड करिए, इसमें 5 श्वास लीजिए। 1 deep breathing 2 3 4 5 and slowly down। दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखिएगा। यहाँ पे धीरे धीरे श्वास लेते हुए सरल भुजंगासन का अभ्यास करना है। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ के एल्बो रखिए, एल्बो रखिए। इस सरल भुजंगासन में एल्बो नीचे ही रहेगा, सिर्फ लोअर बॉडी। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट। जिनको लोअर बैक का पेन है ज्यादा या सर्वाइकल का, उनके लिए ये अभ्यास अच्छा है। इसमें ज्यादा खिंचाव नहीं होता है। और जो पूर्ण भुजंगासन कर सकते हैं तो पूरा बॉडी को लिफ्ट करिए। सांस लेते हुए शोल्डर लिफ्ट करना है और इस शोल्डर को थोड़ा और ऊपर उठाइए। अब यहाँ पर पेट को अंदर खींचेगा टाइट करके, चिन खींचिए एंड स्लोली ब्रीथ आउट। थायराइड का भी अभ्यास इसी में हो सकता है। अगर आप थायराइड के लिए करें तो इसी कोबरा पोज में आइए, चिन खींचिए। 5 बार अपनी चिन को अप एंड डाउन करना है एंड स्लोली डाउन। ये डबल चिन के लिए भी है और थायराइड ग्लैंड्स के लिए। ब्रीथ इन में ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट स्लोली डाउन। मसल्स के साथ हमें उठना है, ध्यान रखिए। होल्ड करेंगे, लोअर एब्डोमेन खींचेंगे, लोअर एब्डोमेन खींचा एंड स्लोली ब्रीथ आउट। 10 से 15 बार ये अभ्यास दोहराना है। ब्रीथ आउट में डाउन, रिलैक्स। श्वास लीजिए आराम से, अभी श्वास लीजिए। अगर कहीं पे भी अभी रिसेंटली कुछ खिंचाव आ जाता है तो बताना है, उसको तुरंत की तुरंत रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ से मकर आसन, एक मकर आसन का अभ्यास है, बहुत बेस्ट अभ्यास है जो स्लिप डिस्क के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप लोग तो ऑफिस में बैठे रहते हैं और ग्रेविटी के कारण अपनी बॉडी तो धीरे धीरे ऐसे हो ही जाती है। जब आप चेयर में बैठते हैं तो कभी भी घर पे आने के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट आप उसमें आराम कर सकते हैं। शोल्डर लेवल में हमें इसको रखना है। तो शोल्डर लेवल में अगर हम रखते हैं तो लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें धीरे धीरे श्वास के साथ में दोनों पैरों को बैंड कर सकते हैं।
खींचा हुआ देखो कहाँ पे आया एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ये ट्रीटमेंट है आप लोगों के लिए बेस्ट अभ्यास है जो आप घर में थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ा झुकाव दे करके बैठे रहते हैं चेयर पर, और ये सही से देगा आपकी बॉडी को। तो ब्रीथ इन करते हुए पैरों को अपने खींच सकते हैं और ब्रीथ आउट में ज़्यादा झटके से नहीं खींचेंगे, घुटनों का ध्यान रखना है। ये लोअर बैक के लिए, हमें मालूम है कि मिडिल बैक में भी स्ट्रेच आता है, थोड़ा सा दर्द होता है, तो आप यहाँ से एल्बो को धीरे से आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये जकड़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद में फिर सेम यही अभ्यास आप कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तो आगे बढ़ाइए, एल्बो चेक करिएगा कहाँ खींचा हुआ है स्पाइन, कौन से हिस्से। और अगर किसी को सर्वाइकल का या फिर यहाँ का दर्द है, गर्दन दर्द होता है, तो थोड़ा और आगे बढ़ाइए, फिर ऐसे करिए, सेम अभ्यास मिनिमम 10 टाइम। सर्वाइकल का, गर्दन का दर्द, ये आपको रिलीफ देगा। पैरों को बिना मूव किए भी इसमें आराम किया जा सकता है। ये मेडिटेशन का भी पोज है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, पूरा रिलीफ आप फील करोगे। सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, डीप लंग्स पावर इसमें बढ़ती है। ओके, अभी यहाँ से धीरे से डाउन, ये 3 स्टेप इसका बहुत महत्वपूर्ण है स्पाइन के लिए। ऐसे में कैट पोज का अभ्यास करना, धीरे से घुटनों के बल आ सकते हैं, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखिए, कैट स्ट्रेच पोज। सांस लेते हुए ऊपर की ओर हमें देखना है, लोअर बैक को नीचे की ओर पुश करते हुए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरना है लंग्स में। सांस छोड़ते हुए चिन को नीचे की ओर, शोल्डर ब्लेड पूरा लिफ्ट करना है, हायर ग्लैंड्स को पुश करना है, एल्बो सीधा रहेगा। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, ऊपर देखिए, श्वास लेते ऊपर देखेंगे, चिन खींचिए, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते हुए इंटेस्टाइन को धीरे धीरे पुश करिएगा, यूरिन ब्लेडर पे प्रेशर डालिए। इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। अगर शोल्डर पेन करता है तो रुक जाना है, ब्रेक ले सकते हैं इसमें। जिसको घुटनों का पेन है या घुटनों की समस्या है तो या तो मैट को फोल्ड करके रख सकते हैं घुटनों के नीचे, या एक डिस्क, एक गद्दी आती है उसको घुटनों के नीचे रख के आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण अभ्यास है। लेट्स डाउन। यही अभ्यास हम अगर रेगुलर करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत जल्दी कारगर है। अभी हम लेट जाते हैं, कमर के थोड़ा शवासन, क्योंकि पूरा दिन का तनाव दूर करने के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। तो योग निद्रा हो जाएगा। इस समय थोड़ा कम है, वरना आपको यहाँ पर सुला देते हैं।
पैरों को थोड़ा सा वाइड करके हम रख सकते हैं। हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां बिल्कुल ढीली, शरीर सिर से पैरों तक पूरा ढीला। आंखें बंद रखिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेली ऊपर की ओर, बिल्कुल ढीली। दोनों कंधे बिल्कुल ढीले। अपने मन से पूरे शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करना है। तीन से 4 लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को और ढीला छोड़ दीजिए। मन में कोई विचार नहीं। सिर से पैरों तक पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शिथिल, शांत। दोनों हाथ बिल्कुल ढीले। दोनों पैर बिल्कुल ढीले। पेट, पीठ, छाती, कमर, गर्दन, सिर, चेहरा। चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली। मन में कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। जिस भी अंग का मैं नाम लूंगा उस अंग को ढीला छोड़ते हुए जाना है। अपने मन को उस भाग से जोड़ना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। अपने मन को दाईं ओर या राइट साइड ले आइए। दाहिने हाथ की उंगलियों को देखिए। दाहिने हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला। ध्यान है किसी भी पार्ट को हमें हिलाना नहीं, बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। दाहिने हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां और अंगूठा बिल्कुल ढीला। कलाई, कहुनी, दायां कंधा, पूरी दाईं भुजा, पूरी दाईं भुजा बिल्कुल ढीली। ऐसे ही अपने मन को बाईं ओर लेके आइए। बाएं भुजा पर ध्यान लगाइए। बाएं हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
बाहुली, कंधा, पूरी बाईं भुजा, पूरी बाईं भुजा बिल्कुल ढीली, शिथिल, शांत। अब अपने मन को बाईं भुजा से हटाकर दाएं पैर पर ले आइए। दाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल ढीला, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार उंगलियां और अंगूठा एक साथ बिल्कुल ढीला। दाएं पैर का तलवा, तलवे का ऊपरी हिस्सा, टखना है एंकल, दाएं पैर की पिंडली या काफ मसल्स, दाएं पैर का घुटना, दाएं पैर की जांघ, दाएं हिप मसल्स, पूरा दायां पैर, केवल दायां पैर ढीला छोड़ना है। पूरा दायां पैर बिल्कुल ढीला, शिथिल, शांत। अब अपने मन को दाईं ओर से बाएं पैर पर ले आइए। बाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल ढीला, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां, अंगूठा एक साथ बिल्कुल ढीला। बाएं पैर का तलवा, तलवे का ऊपरी हिस्सा, एडी, टखना या एंकल, पिंगली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की जांघ या थाई मसल, नितंब या हिप मसल, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर बिल्कुल ढीला। अपने मन को पेट या नाभि पर जोड़िए। पूरा नाभि को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। पेट, नाभि बिल्कुल ढीला, पीठ या लोअर बैक बिल्कुल ढीली, छाती, छाती के मध्य का भाग बिल्कुल शिथिल, शांत, कमर बिल्कुल ढीली, गर्दन, गर्दन के चारों ओर का भाग, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग, चेहरा, पूरा शरीर सिर से पैरों तक बिल्कुल ढीला, शिथिल, शांत। अब अपने मन को नासिका पर, जहां से श्वास शरीर के अंदर आती है, शरीर से बाहर जाती है, ध्यान लगाइए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास की लंबाई, श्वास का टेम्परेचर, एवं श्वास की गति को देखना है, महसूस करना है और उसको सामान्य बनाना है।
शरीर को ताड़ासन की अवस्था में तानिएगा, दोनों हाथ ऊपर की ओर। रबड़ की तरह अपने पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और धीरे से उठ करके बैठना है। सुखासन या पद्मासन। समय का थोड़ा कमी है, मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। भस्त्रिका प्राणायाम, प्राणायाम के लिए थोड़ा धीरे कमर गर्दन सीधी। भस्त्रिका हमारे नोज को या रास्ता जो है जहाँ से हम श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं उसको साफ करता है, उसकी डस्टिंग करता है, जिससे हम पूरा दिन में डीप श्वास ले सकें। अगर हम सुबह इस अभ्यास को करते हैं तो पूरा दिन हमारी श्वास जो हमें मालूम नहीं होता है वो चलती रहती है, वो अच्छे से श्वास आएगी और श्वास जाएगी, जिससे आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे। इसमें क्या करना होता है, दोनों हाथों को ऐसे नीचे करके श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, इसमें जितना हो सकता है स्ट्रेच करिए फिंगर को, ये हाथों के भी अभ्यास है, और श्वास छोड़ते हुए। अब इसमें झटका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग, मैं इस झटका भी बताऊंगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो अपर बॉडी को हमने खींचा है ऊपर। अपर बॉडी में मिनिमम अगर 50 किलो वजन है तो 25 ऊपर है और 25 नीचे लोअर बॉडी में, तो आपने झटका दिया लोअर बैक पे, तो आपका लोअर बैक खराब हो सकता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, हमें सिर्फ रिब्स ओपन करना है और ब्रीथ आउट। अगर इन लोअर या अपर आर्म से हम अपने साइड में दबाते हैं तो हमारे दोनों नोस्ट्रिल एक्टिव होते हैं, तो इसको साइड में दबाना है, यहाँ से साइड में सब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरा लिप्स ओपन करिए और श्वास छोड़ते, श्वास नोज से छोड़ना है। इस अभ्यास को 20-20 के आप 3 राउंड घर पे कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 20 का सेट करने के बाद में नॉर्मल श्वास लेना है, फिर 20 करना है, फिर नॉर्मल श्वास 3 से 4 बार इसको दोहरा सकते हैं। झटका बिल्कुल भी नहीं देना, ना गर्दन में आना चाहिए ना लोअर बैक में। इसके बाद में आते हैं कपालभाति का। कपालभाति पेट से, पेट का अभ्यास है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम के लिए होता है, फ्रंटल माइंड के लिए होता है। अब इसमें एब्डोमेन को अंदर की ओर पुश करना है, श्वास को बाहर थ्रो करना है। अब नाभि से स्पाइन को टच कराने की कोशिश करना है। फास्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इस अभ्यास का दोहराना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए इस अभ्यास लोग सभी लोग कपालभाति तो करते हैं, योगा तो करते हैं, लेकिन ये कब और कितना काउंट करने के बाद में कार्य करता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। सर हो सकता है आप 2-3 मिनट करते हो मुश्किल से, ये 300-400 के बाद स्टार्ट करता है काम। जब आप नॉन स्टॉप उसकी प्रैक्टिस 400 तक लेके आओगे तब ये आपको हीट देना चालू करेगा। तब इसके बाद जितना भी आप करोगे आपका वेट कम करेगा, आपको जो जो चाहिए वो ये अभ्यास बेनिफिट होगा। आप 300 से ज्यादा जाते हैं इसलिए बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। मिनिमम 300 से होगा, मिनिमम 300 और भी नॉन सेकंड के अनुसार से फास्ट करेंगे तो आपका लंग्स ये भी नहीं करना, बिल्कुल स्लो चलना है, समय देना है इसमें, क्योंकि जितना आप इजीली करेंगे, आराम से करेंगे, इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तब ये काम करता है। एब्डोमेन को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास थ्रो करना है, आंखें बंद करके नर्वस सिस्टम में ध्यान रखना है। इस अभ्यास से माइंड का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, माइंड के लिए अभ्यास है। इसमें लोअर बैक पे झटका नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो
सबसे इम्पोर्टेंट है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी नाड़ी को शुद्ध करता है। योगिक भाषा में तो आपको समझाएंगे तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जिसमें हम चक्रास एक्टिव करते हैं। मेरी भाषा में, मेरे अध्यात्मिक योग की भाषा में चक्रास में ग्लैंड्स को मानता है। हमारी जितनी भी ग्लैंड्स है उनको अगर आप एक्टिव कर लेंगे तो आपके अंदर सारी ऊर्जाएं आ जाएगी, और उनके लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट नोज से हम स्टार्ट करेंगे, श्वास लेते हुए डीप श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से हमें श्वास छोड़ना है। ध्यान देना है श्वास की लंबाई पर। कमर गर्दन सीधी रहे। देखिए जो भी श्वास हम ले रहे हैं वो आपके लंग्स में जाता है, और लंग्स को हमें दबा के नहीं रखना है। हम अगर आगे की ओर झुक के रहेंगे तो रिब्स हमारे नीचे की ओर पुश करेंगे और श्वास प्रॉपर्ली नहीं भर पाएगा। कंधों को खोल करके अच्छे से बैठिएगा, कमर सीधी रखते हुए। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अनुभव विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको बोला जाता है। ये हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। इसमें अंतर कुंभक या बाह्य कुंभक भी हम कर सकते हैं, जिसको हम रोकना बोलते हैं। श्वास ले करके अंदर रोक सकते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, या किसी भी मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं मन ही मन। और श्वास छोड़ने के बाद में भी आप श्वास को रोक सकते हैं। अगर प्राणायाम में कोई भी आप प्राणायाम ना करें, सिर्फ ये करें, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सुबह आप खाली पेट रह करके अच्छे से फ्रेश हो करके तब इस अभ्यास को दोहराइए, तो पूरे शरीर को शुद्ध और स्वच्छ बनाता है। अब आगे लास्ट में हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुबह के टाइम अगर करेंगे तो आपका पूरा दिन मस्तिष्क एक्टिव रहेगा और आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में दोनों कान को अच्छे से बंद करिए और आंखें बंद करके लंबी श्वास लेना है, और श्वास लेकर एक साउंड पैदा करना नर्वस सिस्टम है। चैंट करना है 3 टाइम, और 3 टाइम में 3 जगह स्पिरिचुअल मंत्र है। एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो नाभि, एक हार्ट वाला एरिया होता है, और एक नर्वस। ये 3 ऐसी जगह है जो पूरे शरीर को चलाती है। इन तीनों पे एक एक मंत्र को, ओम को हम चैंट करते हैं और इसको प्रे करेंगे कि ये सारी चीजें ठीक हो जाए। लंबी गहरी श्वास,
चेयर का बताना है तो मैं एक मिनट और लेता हूँ बस, क्योंकि आप लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया करें ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अगर गर्दन में दर्द होता है तो ऐसे श्वास लेते ऊपर श्वास छोड़ते। कभी कभी स्पाइन को ट्विस्ट करने के लिए चेयर का जो साइड में हाथ रखने का होता है उसको ट्विस्ट करके श्वास छोड़ के पीछे को श्वास लेते श्वास छोड़ते। एब्डोमेन के लिए या पेट कम करने के लिए जो इंसान मैट पे नहीं बैठ सकता, ब्रीदिंग ब्रीद आउट। पैनक्रियास ग्लैंड्स के लिए भी इरिटेटर के लिए यहाँ से अब बैठ के गर्दन भी घुमा सकते हैं, शोल्डर भी घुमा सकते हैं। नी के लिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। और स्पाइन को अगर बैंड करना है साइड में, ये ऑफिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपको करते रहना है। वन डंडा रखा उसको हाथ में वन इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इतना अच्छा है कि आप स्ट्रेच कर सकते हैं, पैरों को खींच सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने वैसे बताया, समय की कमी दिखा है, तो आप ये अभ्यास को बीच बीच में आप करते रहिए, ठीक है। We are bringing the chair. We are bringing